हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वन मार्क्स क्वेश्चन वीडियो ऑफ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। मैं हूं दिशा एंड द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज चैप्टर 5 कंटेम्पररी साउथ एशिया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होने के बाद साउथ एशिया में जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए वो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। Question number 1 is identify any one reason for the aspiration of democracy in South Asia. लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है एंड इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि साउथ एशिया की जो मोस्ट कंट्रीज हैं वो चाहती हैं डेमोक्रेटिक रहना, उसका रीजन बताना है आपको। द आंसर इज कि साउथ एशिया के जो लोग हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और जो इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेटिक रहना चाहते हैं उनका साथ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका का पुराना नाम वाज सीलोन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। पहला है भूटान, उसके आगे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सेकंड इज नेपाल, उसके आगे लिखा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री अपने पॉलिटिकल स्टेटस से करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन ए इज ओनली फर्स्ट, बी इज ओनली सेकंड, सी बोथ और डी नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज सी बोथ। भूटान कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की 2008 में बनी और सेम ईयर नेपाल ने अपने आप को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया। Question number 4. Which of the following countries is usually not included in Southeast Asia? A is Maldives, B Myanmar, C Bangladesh or D Pakistan. So उसका correct answer is B Myanmar. Also Myanmar is not a member of SAARC. Question number 5. In the 1970 general elections in Pakistan, the Awami League led by which leader won all seats in East Pakistan? Answer is Sheikh Mujibur Rahman. He was the leader. Also last year के क्वेश्चन पेपर में आपको इनकी पार्टी का नाम भी पूछा गया था, so it can happen कि पार्टी का नाम भी आपसे आंसर में पूछ लिया जाए, so it is the Awami League. Question number 6 is which party led the largely non-violent movement in Nepal to establish democracy? तो इस पार्टी का नाम था द सेवन पार्टी अलायंस। इसमें रियल में 7 पार्टीज ने अपना अलायंस बनाया था और ये डेमोक्रेसी के लिए इन्होंने एक नॉन वायलेंट मूवमेंट रेज किया था। Question number 7 is after the 1970 general election under the military rule of General Dash, the Pakistani army tried to suppress the mass movement of the Bengali people. तो ये जनरल का नाम आपको बताना है, it was General Yahya Khan. Question number 8 is how long did East Pakistan and West Pakistan remain as a country? So आप इसमें years लिख देंगे, last year ये question पूछा गया था, so you can simply write from 1947 to 1971. Question number 9. Which community dominates the politics of Sri Lanka? Again last year question पूछा गया है, so it was Sehla community. Question number 10. In 2015, which of the India's neighboring countries adopted a new constitution? So the answer is Nepal. Question number 11. आपको true या false बताना है. The statement is Sri Lanka was one of the first developing countries to successfully control the rate of growth of population. So ये statement आपका absolutely correct है. Sri Lanka indeed was the first developing country to have successfully controlled growth of population. Question number 12 is in which year India and Pakistan signed the Indus Water Treaty? It was year 1960. Next question 13. Okay, so this is in continuation with the last question. The question is which international organization mediated between India and Pakistan for Indus Water Treaty? तो Indus Water Treaty के लिए जिसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जिस ऑर्गेनाइजेशन ने मीडिएट किया था, it was the World Bank. Question number 14 is arrange in chronological order. तो जो इवेंट सबसे पहले हुआ है उसको आपने सबसे पहले प्लेस करना है, जो लास्ट में हुआ है उसे लास्ट में प्लेस करना है. First is Sri Lanka got independent. Second is India and Pakistan conducted nuclear tests. Third is Indus Water Treaty and fourth है शिमला Agreement. तो इनमें सबसे पहले जो हुआ था it was श्रीलंका got independent in 1948. इसके बाद 1960 में Indus Water Treaty साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. Then third was Shimla Agreement. It was signed in year 1972 and फिर लास्ट में हुआ इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर test. It was in year 1998. So this is the correct chronology. Question number 15 is India's neighbors often think that the Indian government tries to dominate and interfere in the domestic affairs of the small countries of the region.
इज दिस अ करेक्ट इंप्रेशन? तो ये क्वेश्चन ओपिनियन बेस्ड है और आपको बताना है कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हमेशा ब्लेम करती हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि ये डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, कि हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये इंप्रेशन करेक्ट है? तो सोनली बेस्ड ऑन योर ओपिनियन, लाइक फॉर इंस्टेंस आप कहते हो कि नहीं इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर करती नहीं है, बट देयर आर टू रीजंस। फर्स्टली कि कंट्रीज इतनी छोटी हैं कि दे कैन बी मैनिपुलेटेड बाय बिगर पावर्स लाइक यूएस और लाइक फॉर इंस्टेंस चाइना या रशिया। तो इंडियन गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे और किसी बड़ी पावर को इनके साथ ना मिलने दे ताकि हमें कोई हार्म ना हो। सेकेंड रीजन ये है कि दीज कंट्रीज आर सो स्मॉल दैट दे हैव देयर ओन इंटरनल इनसिक्योरिटीज, कि शायद इंडिया बीइंग सच अ बिग कंट्री कैन अटैक अस फॉर लाइक। सो आप ये लिख सकते हैं। एंड इफ यू थिंक दैट इंडिया डज इंटरफेयर इन डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ अदर कंट्रीज, तो वो भी आप लिख सकते हैं। जो भी रीजन आपको सुटेबल लगे उसके साथ आप जा सकते हैं। Question number 16. Correct the following statement and rewrite it. A full-scale war between India and Bangladesh broke out in November 1971. तो इसमें आपको जहां पर गलती है उसको ठीक करके आपको स्टेटमेंट वापस रीराइट करना है। तो आंसर देखते हैं। इट इज, इसमें दो एरर्स हैं। फर्स्टली इट वाज नॉट बांग्लादेश, इट वाज पाकिस्तान। एंड सेकेंडली वॉर जो हुआ था वो नवंबर में नहीं दिसंबर में हुआ था। 3 दिसंबर 1971 को स्टार्ट हुआ था। सो नाउ द थिंग इज कि ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है और इतना माइन्यूटली आपको डेट्स के साथ सब कुछ याद करना है, बिकॉज अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो आपका गलत हो सकता है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस कि ये पूछा गया है लास्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 17. विच वॉज द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू लिबरलाइज इकोनॉमी? तो साउथ एशिया में पहली कंट्री कौन सी जिसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया था? इट वॉज श्रीलंका। Question number 18. Who took over the administration of Pakistan after it framed its first constitution? तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जिन्होंने पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला था, इट वाज जनरल अयूब खान। Question number 19. Fill in the blanks with suitable name. India and Dash allow their citizens to travel and work within these countries without visas and passport. तो इंडिया के कौन से नेबर के साथ इंडिया की ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि उनको वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती? एंड प्लीज नोबडी इज गोइंग टू से पाकिस्तान, इट्स नेपाल। Question number 20. Which political party dominated the political affairs of Maldives in 2005? So again this question was asked in last year's paper. Answer है Maldivian Democratic Party. Question number 21. The 18th SAARC summit in November 2014 was held at which place? So now you must be thinking कि इतना पुराना नवंबर 2014 का क्वेश्चन कहाँ से आ गया अचानक से? The thing is कि this was the last SAARC summit और ये आपकी बुक में गिवन है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। ऑल्सो इसके बाद 2016 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में साथ की मीटिंग होनी थी 19th, पर वो हो नहीं पाई बिकॉज उरी में स्ट्राइक्स हुई एंड देन इंडिया बॉयकॉटेड इट एंड देन अदर कंट्रीज ऑल्सो बॉयकॉटेड इट। उसके बाद हर ईयर ये डिले होते गया। 2020 में अगेन पाकिस्तान इज टू होस्टेड, बट आई डोंट थिंक कि इन ड्यू ऑफ दिस कोरोना एपिडेमिक एंड ऑल दिस गोइंग ऑन ये हो पाएगी। So now nobody knows कि 19th SAARC summit ultimately कब होगी. So the correct answer for this question is Kathmandu, Nepal. Question number 22 is in 1996 India signed Farakka Treaty with which country, and through this treaty they agreed to share the water of which river? So 1996 में ये treaty sign हुई है and same name का एक dam भी है which is Farakka Dam which is in कोलकाता, वेस्ट बंगाल। सो यू नो कि दिस ट्रीटी वाज साइंड विद बांग्लादेश एंड जो रिवर का पानी शेयर करने के लिए ट्रीटी हुई थी इट वाज गंगा। क्वेश्चन नंबर 23 इज सार्क मेंबर्स साइंड साफ्टा व्हिच प्रॉमिस्ड द फॉर्मेशन ऑफ फ्री ट्रेड जोन फॉर होल ऑफ साउथ एशिया। व्हाट डज साफ्टा स्टैंड्स फॉर? आपको साफ्टा की फुल फॉर्म बतानी है एंड इट इज साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क एंड व्हेन डिड इट बिगिन? सार्क की फुल फॉर्म बतानी है और आपको साथ में ये भी बताना है कि ये किस ईयर में स्टार्ट हुआ था या स्टैब्लिश हुआ था। तो सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एंड इट स्टार्टेड इन ईयर 1985। Question number 25 is what is the full form of LITTE? That is LTTE.
It was a militant group in Sri Lanka, and इसकी full form है Liberation Tigers of Tamil Eelam. The thing is कि श्रीलंका की जो majority community है that is Sinhala, and उनका जो symbol है it is lion. तो इसके अगेंस्ट में जो मिलिटेंट्स खड़े हुए थे अपने राइट्स के लिए लड़े थे, they choose their symbol as tiger, but in last decade this organization was completely wiped out. That brings me to the end of this video. Guys, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखिए, because most of the times we get questions like कि 2021 बोर्ड्स कब होंगे, एंड एज आई से कि मोस्ट प्रोबेबली अपने ही टाइम से होंगे, बिकॉज अब अनलॉक 5 भी आ गया है, आपके स्कूल्स भी खुलते ही होंगी जल्दी. सो वट एवर हैपन्स, आप अपनी तैयारी पूरी रखिए. ऑल्सो वी आर गेटिंग मेनी रिक्वेस्ट फॉर कंटेंट लाइक कि इस चैप्टर के क्वेश्चन बना दीजिए, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बना दीजिए. As we are trying, but the thing is कि ये जितना easy लगता है उतना है नहीं. Also, please, if you like the video, please hit the like button. And मैं मिलूंगी आपको next video में with next chapter. Till then, keep learning, keep growing.